تو آئیے حضرات ہم سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مقدس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سرکار غوث اعظم سے ہم جو ہے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں اپنی فریادیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج وہ محفل ہے، آج اس ولی کی ہم نے محفل کو سجایا ہے کہ جس کو ولیوں کا ولی کہا جاتا ہے، جس کو جو ہے ولیوں کا سلطان کہا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے اور آپ کے نبی جو مکے کی دھرتی پر پیدا ہوئے، جس کے صدقے میں کائنات بنی، جس کے صدقے میں زمین بنی، جس کے صدقے میں چاند و سورج بنا، جس کے صدقے میں آسمان بنا، جس کے صدقے میں کل جہان بنا، وہ مکے کی زمین پر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، مکے کی زمین پر پیدا ہونے والا وہ پیغمبروں کا پیغمبر، وہ نبیوں کا سلطان جب پیدا ہوتا ہے، جب مکے کی زمین پر پیدا ہوتا ہے، ہمارے اور تمہارے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتے ہیں، مکے کی زمین میں پر پیدا ہونے والا بچہ ہمارے اور تمہارے بچوں کی طرح بچہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے اور تمہارے بچہ پیدا ہوتے ہیں تو روئے زمین پر روتے چیختے بلکتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن مکے کی زمین پر جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کی شان دیکھ کے سنی بھائیو، مکے کی زمین پر بچہ پیدا ہونے والا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ سجدہ کرتا ہوا پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جو مکے کی زمین پر پیدا ہوا وہ اس نے معجزہ دکھایا، وہ معجزہ لے کر کے تشریف لایا۔ میرے عزیزوں، دنیا کے اندر جتنے بھی نبی تشریف لائے تمام کے تمام معجزہ لے کر آئے، لیکن مصطفیٰ معجزہ بن کر تشریف لائے۔ لیکن نبی جب کوئی جو جس سے نبی سے کوئی بھی ایسا عجوبہ ظاہر ہوتا ہے جو انسان کی سمجھ سے باہر ہو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ لیکن کسی ولی سے ایسی کوئی بات ظاہر ہوتی ہے جو انسان کی سمجھ سے باہر ہو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ لیکن میرے غوث اعظم کی کرامت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت کے معجزے سے ملتی جھلتی کرامت ہوتی ہے، معجزوں کا پردہ ہوتی ہے۔ مکے کی زمین پر جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ سجدہ کرتا پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اب جو جیلان کی زمین پر بچہ پیدا ہو رہا ہے، جسے ہم اور آپ عبد القادر کے نام سے جانتے ہیں، جس کو ہم اور آپ بڑے پیر کے نام سے جانتے ہیں، جس کو ہم اور آپ دستگیر کے نام سے جانتے ہیں، وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ادھر معجزہ لے کر نبی تشریف لائے، ادھر کرامت لے کر عبد القادر تشریف لائے۔ عبد القادر جب پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہوتے ہی روزہ رکھتے نظر آتے ہیں۔ ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ یہ معجزوں سے ملتی جھلتی کرامت ہے، معجزوں کا پرتو ہے یہ کرامت، کیونکہ وہ پیدا ہوتے ہیں تو وہ سجدہ کرتے ہوئے پیدا ہوتے نظر آتے ہیں، یہ پیدا ہوتے ہیں تو روزہ رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ مکے کی زمین پر جو بچہ پیدا ہوا وہ بھی عقل کی بلندی لے کر پیدا ہوا، وہ بھی عقل کی بلندیوں پر فیض ہو کر پیدا ہوا۔ جو جیلان کی زمین پر بچہ پیدا ہوا وہ بھی عقل کی زمین پر پیدا ہو کر، یعنی وہ بھی عقل کی بلندیوں پر فیض ہو کر پیدا ہوتا نظر آیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے، پتہ یہ چلتا ہے ہمارے اور تمہارے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو عقل کی بلندی لے کر پیدا نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ جب پیدا ہو رہے ہیں تو عقل کی بلندی لے کر کے پیدا ہو رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، آج کے زمانے کے کچھ لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں کسی غیر اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے، کسی غیر اللہ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، کسی غیر اللہ کو نہیں ماننا چاہیے۔ لیکن میں کہوں گا اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ماننا چاہیے، صرف اللہ ہی کو ماننا چاہیے۔ جب اللہ ہی کو ماننا چاہیے، میرے عزیزوں ذرا یہ تو بتاؤ، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ماننا چاہیے، لیکن اگر وہ رب کعبہ، وہ پروردگار عالم، وہ خلاق کائنات، وہ ہمارا اور تمہارا رب، وہ ہمارا اور تمہارا اللہ، وہ ہمارا اور تمہارا پالنہار، جس نے ہمیں اور تمہیں زندگی بخشی ہے، جس نے ہمیں اور تمہیں زندگی کا شعور بخشا ہے، چلنے پھرنے کی طاقت بخشی ہے، دیکھنے کی قوت بخشی ہے، سننے کی سماعت بخشی ہے، اس رب کعبہ کو ہی مانا جائے، اس کے سوا کسی اور کو نہ مانا جائے۔ لیکن وہ پروردگار عالم ہماری خامیوں کی وجہ سے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر ناراض ہو جائے، ہوتا ہے نا کہ رب ناراض ہو جاتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ جب کسی انسان سے رب ناراض ہو جاتا ہے تو زندگی میں بدلاؤ آ جاتا ہے، زندگی جو ہے اس کی برباد ہونے لگتی ہے، زندگی میں اس کی کوئی عزت کرنے والا نہیں ہوتا ہے، اس کے رزق میں برکت ہونا ختم ہو جاتی ہے، پریشانیوں کا سامنا دیکھنا پڑ جاتا ہے۔ لیکن جب
को रब काबा नाराज होता है तो डायरेक्ट ना हमारी रसाई है ना तुम्हारी रसाई है कि डायरेक्ट रब तबारक व तआला से जाकर के मिल लें, डायरेक्ट अल्लाह ताला से जाकर हम बातें कर लें। मूसा ने बातें करना चाही तो हजरत मूसा जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत की नूर की तजल्ली को बर्दाश्त न कर पाए। वो तो नबी हैं, हम तो इंसान हैं, कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? हम तो बंदे हैं, कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? लेकिन जब रब काबा नाराज हो जाए तो अब डायरेक्ट हम नहीं मिल सकते। अब आप जो है अल्लाह को मनाने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह वालों के दरबार में आना पड़ेगा। आपको जो है दुनिया के किसी खित्ते में, किसी गोशे में, किसी कोने में आपको रब नहीं मिलेगा। आपको अगर रब ढूंढना है तो आपको गौसे आजम की बारगाह में अल्लाह मिल जाएगा, आपको गरीब नवाज की बारगाह में अल्लाह मिल जाएगा, आपको साबिर पाक की बारगाह में अल्लाह मिल जाएगा, आपको मखदूम सिमना की बारगाह में अल्लाह मिल जाएगा, आपको शाहजी बाबा की बारगाह में अल्लाह मिल जाएगा। शाहजी नेटवर्क आज तुम्हारी ये इस बस्ती के अंदर लगा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पैगाम पूरी दुनिया के अंदर जाएगा। ये पट्टी के गयूर मुसलमानों जरा दिलजोई के साथ ये पैगाम अपनी तख्तिया दिल पर लिख कर ले जाना और इस पर अमल कर लेना। कसम खुदा की पूरी जिंदगी आपके ये पैगाम काम आएगा और जमाना जब पट्टी के लोगों को देखेगा इस पैगाम पर आप अमल करेंगे तो कसम खुदा की जमाने का हर इंसान आपकी तारीफ करता नजर आएगा। मैं आपको ये आगे बताता जा रहा हूँ कि कैसे आपकी तारीफ होगी। तो हकीकत बात यह है अल्लाह वालों के दरबार में जब आपको अल्लाह मिलेगा, आपसे अल्लाह जब नाराज हो जाए तो इन्हीं अल्लाह वालों के दरबार में जाना पड़ेगा और अल्लाह वालों के दरबार में जाकर के अर्जी पेश करना पड़ेगी, अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिरी पेश करना पड़ेगी। तो आपसे जो है आपसे अल्लाह राजी होगा। यही अब्दुल कादिर जीलानी अल्लाह की बारगाह में आपका अरीजा पेश करेंगे तो आपसे रब तबारक व तआला नाराज यानी राजी हो जाएगा। पता ये चलता है, मालूम ये होता है कि अल्लाह अल्लाह कहे जाने से ही अल्लाह मिले। अरे अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। एक पैगाम देकर जाना चाहता हूँ मेरे अजीजों। मैंने जिस आयत करीमा को तिलावत किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरना भी जरूरी है, सच्चों के साथ होना भी जरूरी है। मैं अपनी तकरीर का यानी बहुत जल्द इख्तिताम करूंगा, बस एक पैगाम देकर जाना चाहता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। बस एक पैगाम देकर जाना चाहता हूँ। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान देखे मेरे सुन्नी भाइयों। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो अब सच्चे कौन हैं? आओ जरा देखो सही सच्चे कौन हैं। मैं आपको बताऊं, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब तालीम पूरी हो जाती है, मकतब की तालीम पूरी होती है, तो आप जो है यानी जीलान से जो है बगदाद के लिए तालीम हासिल करने के लिए इजाजत लेते हैं अपनी माँ से। अपनी माँ से कहते हैं, ऐ वालिदा मोहतरमा, अब मेरा दिल चाहता है कि मैं कहीं बाहर तालीम हासिल करने के लिए जाऊं, मैं अपनी जो है तालीम को आगे बढ़ाना चाहता हूं। माँ ने इजाजत पेश करी कि हाँ बेटा अब्दुल कादिर, जाओ कहीं बाहर दीन की तालीम हासिल करने के लिए जा सकते हो। मेरे अजीजों, अब देखो हजरत सरकार अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा मोहतरमा की उम्र 68 साल की उम्र है। इस बुढ़ापे के आलम में आपके वालिद नहीं है, लेकिन इस बुढ़ापे के आलम में आपने इजाजत दे दी। एक ही तो सहारा है ना, एक ही बेटा दिल का टुकड़ा है, एक ही बेटा जो है जिगर का चैन है। अब उस बेटे को भी जो है बाहर जाना पड़ रहा है, माँ को छोड़कर जा रहे हैं। आज इतनी उम्र में कौन सी ऐसी माँ है जो अपने बेटे को इजाजत दे दे बाहर जाने की? आज की कोई माँ ऐसी नहीं है जो इस उम्र में जो है अपने बेटे को बाहर जाने की इजाजत दे दे, लेकिन दीन की तालीम हासिल करने के लिए इजाजत दे दी। सरकार अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इजाजत दे दी जाती है। मेरे अजीजों, सरकार अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब दीन की तालीम हासिल करने के लिए मुल्क ईरान से यानी जीलान शहर से जो है आप बगदाद शरीफ के लिए तालीम हासिल करने के लिए निकलते हैं, लेकिन माँ ने आपको एक जो है नसीहत की थी, एक वसीयत की थी, ये बेटा अब्दुल कादिर, रास्ते में कितनी ही परेशानी आए लेकिन कभी झूठ ना बोलना। सरकार अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी माँ के कौल का अक़्द किया, अपने सीने में छुपा कर उस अक़्द को ले जाते हैं, अपने सीने में बसा कर उस अक़्द को ले जाते हैं और एक काफिले यानी बगदाद जाने वाले
काफिले के साथ लग जाते हैं। अब बगदाद शरीफ को जाने वाला काफिला बगदाद शरीफ को रवाना हो जाता है, आप भी उस काफिले के साथ में हैं। लेकिन मेरे अजीजों जरा गौर करने का मकाम है, सरकार अब्दुल कादिर भी उस काफिले के साथ में है। अब कुछ दूर जब कुछ दूर पहुंचता है काफिला, यानी काफिला रवा दवा है, एक जंगल पड़ता है। बहुत घने जंगल में जाने के बाद में डाकुओं को सरदारों ने यानी डाकुओं ने उस काफिले को घेर लिया है। यानी एक जंगल में बियाबान में एक सेहरा में डाकुओं ने उस काफिले को घेर लिया है। डाकुओं ने जैसे ही उस काफिले को घेरा तो तमाम माल जो आपके पास में था, जो खाने पीने के असबाब आपके साथ में थे, जो बर्तन थे, माल था, जमा पूंजी थी, सारी की सारी छीन ली जाती है। अब सरकार अब्दुल कादिर के पास में आता है वो डाकू, यानी डाकू कहता है कि तुम्हारे पास क्या है? कहा मेरे पास 40 अशरफियां हैं, मैं अपनी सदरी के अंदर सिलवा करके लेकर के आया हूं। मेरे अजीजों गौर करने का मकाम है, सरकार अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो 40 अशरफियां अपनी सदरी के अंदर सिलवा कर ले गए थे, आपने सच सच बता दिया। अब यहाँ तक माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कई डाकू आते हैं और आने के बाद आप जो है बार बार यही पैगाम देते नजर आते हैं। डाकुओं को सरदार आता है, पूछा आपके पास क्या है? 40 अशरफियां हैं। मेरे अजीजों, मेरा वाक़या सुनाने का मकसद नहीं है, सबने ये वाक़या सुना है, सिर्फ बताने का मकसद ये है कि सच्चाई के दामन को थामे रहो। सरकार अब्दुल कादिर कभी झूठ नहीं बोले। मेरे अजीजों जरा सोचो तो सही, कितना असर हुआ करता है। अब्दुल कादिर जब सच बोलते हैं तो डाकुओं ने गौर व फिक्र किया कि एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, लेकिन फिर भी सच बोलता नजर आ रहा है। और हमारी कितनी कितनी उम्रें हो गई हैं, पूरी जिंदगी हो गई चोरी करते हुए, पूरी जिंदगी हो गई डकैती करते हुए, पूरी जिंदगी हो गई हमें झूठ बोलते हुए। लेकिन जो है ये एक छोटा सा बच्चा है, पूछा किस लिए आप सच बोले हैं? कहा अपने रब के खौफ की वजह से मैं सच बोला हूँ, मैं अपनी वालिदा के कौल की वजह से सच बोला हूँ। दिल में ख्याल आता है डाकुओं के कि एक बच्चा अपने बाप अपनी माँ के कौल की इतनी बड़ी तायीद करता है, अपने रब के फरमान की इतनी बड़ी तायीद करता है। हम भी इंसान हैं, हम तो पूरी जिंदगी झूठ बोलते चले आए। जैसे ही दिल में ख्याल आया फौरन रब की बारगाह में ताइब होते हैं और दिल झूमने लगता है, आंखों से अश्क निकलते हैं और निकलने के बाद अब्दुल कादिर के कदमों में गिर जाते हैं, कदमों को चूमने लगते हैं। ए अब्दुल कादिर, अब हम डकैती करना नहीं चाहते, हम गलत रास्ते पर चलना नहीं चाहते, हम झूठ बोलना नहीं चाहते, अब हमें जो है सच्चाई के रास्ते पर लेकर आइए। जब अब्दुल कादिर का दामन थामा, सच्चाई के दामन से जुड़े और कहा अब हमें कलमा पढ़ाइए और मुसलमान कर दीजिए। बस तकरीर खत्म हो गई है। मेरा पैगाम यही था कि मैं आपको बताना ये चाहता था कि सच्चाई एक बहुत बड़ी चीज़ है। जो सच्चाई से जो है सच्चाई के दामन को थामता है, ज़माने में उसकी इज्जत होती है, दुनिया उसका कहना मानती है। लेकिन जो झूठा आदमी होता है, ना उसके माल में बरकत होती है, ना उसके कारोबार में बरकत होती है, ना उसकी ज़िंदगी में बरकत होती है, ना उसकी इज्जत में बरकत होती है, ना उसके विकार में बरकत होती है। वो चाहे झूठ बोलकर इज्जत कमा लूँ, नहीं कमा सकता। वो चाहे झूठ बोलकर पैसा कमा लूं, नहीं कमा सकता। वो चाहे झूठ बोलकर दुनिया में चमक जाऊं, नहीं चमक सकता। इसलिए कि झूठ बोलने वाले शख्स की लोग सामने अगर तारीफ करते होंगे, सामने इज्जत करते होंगे, तो पीछे उसकी जरूर बुराई करते होंगे। पैसा इंसान कमाता है, कमाकर चाहे कितना ही पैसा ले आए, लेकिन पैसे में बरकत होती नजर नहीं आती है, दुनिया में वो चमकता नजर नहीं आता है। अगर आपको चमकना है तो उस मुस्तफा के दामन से जुड़ जाओ, जिसके बारे में आला हजरत फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। हमारे कहने में कोई खामी आई तो अल्लाह माफ़ फरमाए। सब लोग मिलकर पढ़ें हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह।